منبر نور پر تشریف فرما علماء کرام، حفاظ اعظام، ائمہ مساجد، جملہ خوش عقیدہ حاضرین اور پردے میں رہ کر سننے والی حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رسول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین سے آسماں تک ہے، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ سبحان اللہ۔ کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے ثریا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج اس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی مناسبت سے اس محفل نور کو سجایا گیا ہے، اور آج کی اس مجلس میں میرا عنوان اس ذات سے لگتا ہوا عنوان ہے جو ذات بابرکات آج پروگرام کے اختتام پر آپ کو غوث پاک کے مریدوں کے اندر شامل کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے نا، نام معلوم ہے نا، قاضی القضات فی الہند، سبحان اللہ، شہزادہ حضور تاج الشریعہ، سبحان اللہ، جانشین حضور تاج الشریعہ، حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اسد رضا خان قادری برکاتی رضوی مدد اللہ العالی والنورانی، جو آج کی اس محفل کے اختتام میں قادری غلاموں میں نام لکھوانے والوں کو غوث پاک کے مریدوں کے اندر شامل کر کے ان کی قسمت کو معراج عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ویسے بھی چونکہ اخیر میں وہ مائک پر حضرت تشریف لائیں گے بریلی شریف سے، اور روحانی طور پر آج بھی، ابھی بھی، اس وقت بھی ان کی نظر کرم ہم سب کے اوپر ہے۔ اور آج کل پیر بہت ہیں، جیسے مارکیٹ کے اندر آج کل ہر طرح کا مال مل رہا ہے، اصلی بھی مل رہا ہے، نقلی بھی مل رہا ہے، اوریجنل بھی مل رہا ہے، ڈپلیکیٹ بھی مل رہا ہے۔ تو جب ہر چیز کے اندر اوریجنل اور ڈپلیکیٹ کئی کوالٹی بن چکی ہے، تو پیروں کے اندر بھی بہت ساری کوالٹی ہو گئی ہے، کچھ اصلی پیر ہیں، کچھ ڈھونگی اور نقلی پیر بھی ہیں، کچھ اوریجنل پیر ہیں تو کچھ ڈپلیکیٹ پیر بھی مارکیٹ کے اندر لانچ کیے جا چکے ہیں۔ آپ جب مارکیٹ کے اندر مال لینے جاتے ہو تو پوری تلاش کرتے ہو، پہچان کرتے ہو کہ غلط مال میرے پاس میں نہ آ جائے، ڈپلیکیٹ سامان کہیں مجھے نہ مل جائے۔ تو جب آپ
پیر کی تلاش میں نکلتے ہیں تو پھر آپ کو اور زیادہ پہچان کی ضرورت ہے کہ آپ پتہ لگائیں کہ کس پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے ہمیں مرید ہونا ہے، اس لیے کہ جو پیر صحیح معنوں میں پیر نہ ہو وہ تمہاری رہبری نہیں کرے گا، بلکہ اگر تم راستے پر رہو گے تو بھی تمہیں راستے سے بھٹکا کر کے گمراہ کر دے گا۔ حضرات مکرم، بیعت کا معنی، مرید ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں بیعت کا معنی ہوتا ہے پورے طور پر بک جانا، پورے طور پر بک جانا، اور مرید ہونے کا مطلب ہوتا ہے اپنا ہاتھ ایسے کامل پیر کے ہاتھوں میں دے کر کے وعدہ کرنا کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، نیک کام کروں گا اور ہر طرح کی برائی سے پرہیز کروں گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے مرید ہونا۔ اور صحابہ کرام میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت ہوا کرتے تھے۔ کبھی صحابہ کرام نے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہجرت پر بیعت کی، کبھی جہاد پر بیعت کی، کبھی سنتوں پر عمل کی بیعت کی، کبھی بدعتوں سے پرہیز کرنے کے لیے میرے آقا کی بارگاہ میں بیعت کی۔ عورتوں نے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس بات پر بیعت کی کہ وہ بے حیائی سے پرہیز کریں گی، اور مہاجرین نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھوں پر اس بات پر بیعت کی کہ ہم کبھی کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ انصار نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست پاک پر اس بات پر بیعت کی کہ وہ حق کے اوپر ڈٹ کر کے رہیں گے اور حق سے کبھی تجاوز نہیں کریں گے۔ اور عزیزان مکرم، بیعت کا جو سلسلہ آج قائم ہے اس کی شکل اگرچہ دوسری ہے، ورنہ بیعت تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب جو تیرے دست پاک پہ بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں۔ یہ کون سی بیعت تھی؟ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام حدیبیہ سے مکۃ المکرمہ میں کافروں سے بات کرنے کے لیے گئے تھے، اور حدیبیہ کے اندر یہ افواہ پھیل گئی حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، تو بیعت رضوان جو درخت کے نیچے صحابہ کرام نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست پاک پر کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیعت کا ذکر قرآن مقدس کے اندر فرمایا۔ اسی طرح جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام صفا کے پہاڑی کے اوپر بیٹھ گئے، عورتیں میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں باری باری آنے لگی اور میرے آقا علیہ السلام سے بیعت کرنے لگی کہ وہ چوری نہیں کریں گی، وہ بدکاری نہیں کریں گی، عورتوں کو قتل نہیں کریں گی، بہتان نہیں باندھیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیعت کو بھی قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، یعنی اے محبوب یہ جو مومنہ عورتیں آپ کی بارگاہ میں آ کر کے اس بات پر بیعت کر رہی ہے کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی اور بہتان نہیں باندھیں گی، بچوں کو قتل نہیں کریں گی، تو حضرات مکرم بیعت کا سلسلہ تو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ میرا رب قرآن مقدس میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں وسیلہ سے مراد ہے مرشد، یعنی تم کسی مرشد کامل کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ حضرات مکرم، اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی نظریں دیکھ رہی تھی کہ جگہ جگہ لوگ دکان کھول کر کے بیٹھے ہیں، جعلی پیر اور ڈھونگی بابا بن کر کے لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ تو میرے امام نے پوری تفصیل کے ساتھ میں پیر کامل کی شرطوں کو بیان فرما دیا تھا۔ یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھوں گا تاکہ اپنی گفتگو کے اخیر کے اندر جو میں آپ کو دعوت دینے والا ہوں وہ دعوت آپ کو سمجھنے کے اندر آسانی رہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں پیر کے لیے 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ سنی صحیح العقیدہ ہو، اس لیے کہ جو گمراہ ہوگا وہ خود ہی جہنم میں جانے والا ہے، تمہیں کیا جنت میں پہنچائے گا۔ اتنا علم رکھتا ہو جس کے ذریعے وہ کتابوں سے شریعت کے مسائل نکال سکتا ہو، جو علم نہ رکھتا ہو وہ خود ہی نہیں جانتا ہے، تمہیں کیا رایاب کرے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سلسلہ متصل ہو، جب سلسلہ متصل نہیں ہوگا تو وہ سرکار کی بارگاہ تک تمہیں کیسے پہنچائے گا۔ فرماتے فاسق نہ ہو، جو
फासिक होगा उसकी तो ताजीम जायज नहीं है और पीर की तो ताजीम की जाती है। यहां पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, आजकल पीर की शर्तें लोग जानते हैं फिर भी धोखे के अंदर पड़ जाते हैं। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पीर के लिए 4 शर्तें बयान की। क्या इन शर्तों के अंदर यह भी शर्त है कि पीर के लिए जरूरी है कि वो सैयद हो, आले रसूल हो? लेकिन आजकल कुछ लोग बैली शरीफ से दूर करने के लिए और लोगों को धोखा देने के लिए ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि मुरीद तो उसी पीर से होना चाहिए जो पीर सैयद हो, आले रसूल हो, हजरत फातिमा की औलाद में से हो, हसनी हो या हुसैनी हो। अजीजान मुकर्रम, जो इस तरह की बातें करते हैं वो किस तरह से गुमराह करते हैं आओ मैं आपको बताता हूं। क्या गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जमाने के अंदर आले रसूल नहीं थे, सादात नहीं थे, लेकिन आला हजरत ने जब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुरीद होना हुआ तो हुजूर गौसे पाक ने किसी आले रसूल का दामन नहीं पकड़ा, किसी सैयद का दामन नहीं पकड़ा। हुजूर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजरत अबू सईद मखजूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों में हाथ देकर के मुरीद हुए, वो सैयद नहीं थे। हजरत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस पीर से मुरीद हुए, हजरत अबुल हसन वो भी सैयद नहीं थे। हजरत अबुल हसन जिस पीर से मुरीद हुए, हजरत अबुल फरा वो भी सैयद नहीं थे। यानी इमाम रजा अली से लेकर के हुजूर गौसे पाक तक सिलसिला कादरिया के जितने भी बुजुर्गान दीन है आप सबके नाम पढ़ लो। इमाम रजा अली से लेकर के हुजूर गौसे पाक तक सिलसिला कादरिया के अंदर कोई भी पीर आपको सैयद नहीं मिलेगा। तो अगर कोई यह कहता है कि पीर के लिए सैयद होना जरूरी है तो माज़ अल्लाह, क्या सिलसिला कादरिया सही सिलसिला नहीं है? इसके अंदर तो बहुत सारे ऐसे पीर पाए जाते हैं जो सैयद नहीं है। इसी तरह आप देखें सिलसिला चिश्तिया के अंदर हजरत मौला अली के बाद में हजरत हसन बसरी है, वो भी सैयद नहीं है। और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब मुरीद होना था तो किसके दर पे गए थे? हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के दर पे गए थे। सैयद बहुत थे, आले रसूल बहुत थे, सादात बहुत थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना हाथ अगर दिया तो हजरत उस्मान हारूनी के हाथ में दिया जो सैयद नहीं थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने बता दिया पीर के लिए सैयद होना जरूरी नहीं है। सिलसिला नक्शबंदिया में आप देख ले, सिलसिला नक्शबंदिया अगर शुरू होता है हजरत अबू बकर सिद्दीक से शुरू होता है और हजरत अबू बकर सिद्दीक भी सैयद रही है। अजीजान मुकर्रम, ये अच्छी बात है कि अगर कोई सैयद हो और उसके अंदर पीर की शर्तें पाई जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, उसको आप पीर बनाइए। लेकिन ये कहना कि मुरीद तो किसी सैयद से होना चाहिए, ये लोगों को धोखा देना है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है और इस प्रोपेगेंडे से हमें होशियार होने की जरूरत है। इसी तरह हमने बहुत सारे नौजवानों को देखा है, वो करतब ढूंढते हैं, तमाशा ढूंढते हैं, कहते कोई करामत दिखाएगा उससे हम मुरीद हो जाएंगे। हजरत मुकर्रम, किसी पीर के लिए करामत दिखाना भी जरूरी नहीं है। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक बंदा आता है, कई दिनों तक रहता है और फिर बाद में जब जाने लगता है, हजरत जुनैद बगदादी ने कहा तुम क्यों आए थे और क्यों जा रहे हो, तुमने बताया नहीं। वो कहने लगा हुजूर मैं मुरीद होने आया था, आपसे कोई करामत नजर नहीं आई, मैं मायूस होकर के जा रहा हूँ। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा तू इतने महीनों तक यहाँ पर रहा, बता तूने मेरा कोई काम शरीयत के खिलाफ देखा कि नहीं देखा? कहा हुजूर मैंने शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं देखा है। हुजूर जुनैद बगदादी कहते हैं मेरी सबसे बड़ी करामत यही है कि मैं शरीयत के ऊपर अमल करता हूँ। लिहाजा तमाशा मत ढूंढो, कहीं पर झूठे करतब मत ढूंढो। अगर पीर होना है, अगर किसी को मुरीद होना है और पीर तलाश करना है तो ये 4 शर्तें जिस पीर के अंदर पाई जाए उस पीर के हाथों में अपना हाथ दे करके आप हजरात मुरीद हो जाए, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की सआदतें आपका मुकद्दर बन जाएंगी। इसी तरह आजकल कुछ लोगों को देखा जाता है वो दुनियावी फायदा ढूंढते हैं, कहते पीर वो होता है जो बंद दुकान को चला दे, पीर वो होता है जो बंद फैक्ट्री को चला दे, पीर वो होता है जो बीमार को शिफा दे दे। मेरे गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं पीर कामिल वो है कि उसकी बारगाह में अगर कोई बदबख्त आए तो पीर नजर डाल करके उस बदबख्त को नेकबख्त बना दिया करता है। इसीलिए हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में एक बदबख्त आया, थोड़ी देर बैठा, आपके
सिलसिले में दाखिल हुआ, उठ करके जाने लगा। लोगों ने कहा देखो बदबख्त जा रहा है, आवाज आती है। ये जब आया तो बदबख्त था, लेकिन जुनैद बगदादी के दामन से वाबस्ता हो गया तो अब ये बदबख्त नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नेकबख्त बना दिया है। तो हजरत मुकर्रम, आप दुनिया का फायदा न ढूंढे। अगर किसी से आपको बयात होना है तो ये देखे कि आखिरत का फायदा कहां पे नजर आता है। अजीजान मुकर्रम, आज हालात बड़े अजीब हो चुके हैं। लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को फांसने के लिए तरह तरह की शक्लें बना करके आ रहे हैं। रंग बिरंगे कपड़े पहनना, हाथों में कड़े पहनना, 10-10 अंगूठी पहनना, झटादारी बालों को रखना और न जाने चर्च पेन पी करके अपने आप को मस्त बुलंद बताना। कैसी कैसी हरकतें लोग कर रहे हैं और लोगों की आंखों को बंद करके कैसे कैसे तमाशा दिखा रहे हैं। अजीजान मुकर्रम, इस खराब माहौल के अंदर आपको अगर पीरे कामिल का दामन चाहिए तो मैं आपको भी बताऊंगा कि इस जमाने के अंदर पीरे कामिल आपको कहां पे मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उससे पहले एक बात याद रखे, मुरीद होना, बैअत होना ये वाजिब नहीं है, ये सुन्नत है। और कोई बंदा जब मुरीद होता है, अपने पीर के हाथ में हाथ देता है, उसने अपने पीर के हाथ में हाथ दिया, ये एक जंजीर है जो जाके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर पाक से मिल जाती है। और मेरे और कुरान मुकद्दस में आप देखें रब क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ में हो जाओ। यानी बंदा जब किसी पीरे कामिल से बैअत हो जाता है तो वो सच्चों के साथ में शामिल हो जाता है। अब आप पूछेंगे मुरीद होने से फायदा क्या होता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुरीद होने का फायदा यह है कि हमारा सिलसिला हुजूर से जुड़ जाता है। और जो नजर वाले हैं वो फायदा दुनिया में देखते हैं, और जिनके पास नजर नहीं है अगर उनका सिलसिला सलामत है तो फिर वो मौत के वक्त में उसका फायदा देखेंगे, कब्र में उसका फायदा देखेंगे, हश्र में उसका फायदा देखेंगे, पुल सिरात पे उसका फायदा देखेंगे। इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, औलमाए रब्बानीन, औलिया किराम और पीराने कामिल अपने मुरीदों की, अपने शागिर्दों की, अपने पैरोकारों की शफाअत कल क़यामत के दिन करेंगे। वो कब्र में भी काम आएंगे, नज़ा में भी काम आएंगे, पुल सिरात पे भी काम आएंगे, और जब नामे आमाल खुलने लगेंगे तब भी काम आएंगे। पीरे कामिल के दामन से वाबस्ता होने के बाद में बंदे को क्या फायदा मिलता है, और तो बहुत सारे फायदे हैं। इस जमाने के अंदर मैं ये कहता हूं अगर कोई किसी पीरे कामिल से मुरीद हो जाए उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है वहाबी देवबंदी वगैरह गुमराहों से बच करके उसका ईमान और अकीदा महफूज हो जाता है। ये इस जमाने के अंदर पीर से मुरीद होने का सबसे बड़ा फायदा है। और हजरत मुकर्रम, आप कहेंगे हम मुरीद नहीं हुए हैं, अब हमको मुरीद होना है, हम किससे मुरीद हो? तो आप देखेंगे हमारे माशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे पीर मिलेंगे। जिस पीर के अंदर ये चारों शर्तें पाई जाती है उनमें से किसी भी पीर कामिल से आप मुरीद हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हजरत आप बताइए हम किससे मुरीद हो जाएं, तो मेरा मशवरा क्या है उसे मैं दलाइल की रोशनी में आपके सामने रखना चाहूंगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये खानकाह महरिया से मुरीद थे। लोग आपकी बारगाह में आते थे, आने के बाद में अर्ज करते थे हुजूर हमें आप मुरीद कर ले। आला हजरत फरमाते थे मैं नहीं मुरीद करूंगा, जाओ महरिया मुताहरा चले जाओ। कई लोगों को आपने महरिया मुताहरा भेज दिया, खुद आप बैत नहीं करते थे। एक दिन एक मर्तबा रात में सोए हैं, ख्वाब में आपके पीरो मुर्शिद सैयदी आले रसूल अहमदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं और कहते अहमद रजा तुम मुरीद क्यों नहीं करते हो, हमारे सिलसिले को तंग क्यों करते हो, लोगों को मुरीद करो और सिलसिले को फरोग दो। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब के अंदर हुजूर आले रसूल अहमदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये हुक्म सुना, फिर आपने मुरीद करना शुरू कर दिया। फिर बाद में पूरे हिंदुस्तान के अंदर गली गली में, शहर शहर में, बस्ती बस्ती में, करिया करिया के अंदर आला हजरत के मुरीदीन नजर आते रहे और रिजवियों की एक फसल बाहर आ गई। आला हजरत का जब विसाल हुआ, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम मसनद इरशाद पर जलवा अफरोज हुए तो लोग दूर दूर से आते थे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में और आपकी बारगाह में हाजिर होकर के बैत होते थे और रज़वी गुलामों में नाम लिखा करके वो फिर कादरी पट्टा अपने गले के अंदर डाल लिया करते थे। जब हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का इंतकाल हुआ, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मसनद इरशाद पर
पर बैठे, फिर आपकी बारगाह में मुरीद होने वालों का तांता बन गया। कोई किसी स्टेट से आ रहा है, कोई किसी शहर से आ रहा है, लाखों की तादाद में सरकार मुफ्ती आजम हिंद के दर दौलत पर लोग आकर के मुरीद होने लगे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का जब इंतकाल हो गया, उसके बाद में क्या हुआ वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो मैंने भी देखा है और आपने भी देखा है। जिसको भी मुरीद होना था, पीर तो बहुत सारे थे, उसमें से सच्चे पीर भी बहुत थे, लेकिन अगर नजर उड़ती थी तो कहीं और नहीं उड़ती थी। सबकी नजरें अगर उड़ती थी तो हुजूर ताजुश शरिया की तरफ उड़ती थी। सब कहते थे जितने पीर हैं, सच्चे पीर हैं, सब हमारे सरों के ताज है, लेकिन अगर हम अपना सर अगर किसी के कदमों में रखेंगे तो वो हुजूर ताजुश शरिया की जात होगी। और फिर हुजूर ताजुश शरिया के जो सिलसिले के अंदर दाखिल होने वालों की जो आपने बहार देखी है, वो तो नक्शा ही अलग है। उसको जब बयान किया जाता है ना तो फिर आदमी महसूस करने लगता है। ऐसा लगता था महफिल के अंदर नूर का टुकड़ा उतर आया है। हुजूर ताजुश शरिया जब तशरीफ लाते थे, ऐसा लगता था जैसे नूर के काफिले आपके साथ में आ गए हैं। हुजूर ताजुश शरिया जब तक ज़ाहिरी हयात में रहे, लोग आपसे जुड़ करके सिलसिला कादरिया के अंदर मुरीद होते रहे, लेकिन हुजूर ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल हो गया तो लोगों के जहन के अंदर ये ख्याल था कि हुजूर ताजुश शरिया तो चले गए, वो नूर का टुकड़ा चला गया, वो नूरानी काफिले को लेकर के चलने वाला मीरे कारवा चला गया। अब हम किसके हाथों में हाथ दे करके अपने गले के अंदर कादरी पट्टा डालेंगे और हम किसके हाथों में हाथ देकर वैसे पाक के मुरीदों में अपना नाम लिखवाएंगे। लेकिन लोगों को इस बात का एहसास नहीं था। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह और नूरानियत का एक मुक़द्दस काफिला हुजूर कायदे मिल्लत काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती असद रज़ा खान मद्दसिलुल आली व नूरानी को अता करके गए। ये लोगों को उस वक्त पता चला जब मंजर आम पर हुजूर कायदे मिल्लत की जाते बाबरकत आती है। अब यहाँ पर अगर मैं ये जुमला कह करके निकल जाऊं तो आप सोचेंगे मैंने मोहब्बत के अंदर कह दिया है। इसमें मैं थोड़ी तफसील करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है, अगर कोई मुरीद होना चाहता है तो आला हजरत सरकार ने जो पीर की शर्तें बताई है उन शर्तों को देखता है। मैं कहता हूँ हुजूर कायदे मिल्लत की जात को एक तरफ रखो और उसके बाद में जो पीर के अंदर शर्तें जरूरी है उन शर्तों को एक तरफ रखो। सबसे पहली शर्त क्या बताई थी हुजूर आला हजरत सरकार ने कि सुन्नी सही अकीदा हो। मैं कहता हूँ आला हजरत सरकार बहुत पहले कह के चले गए, मैंने इश्क रसूल और गुस्ताखों की नफरत अपने बच्चों को घुट्टी के अंदर पिला दी है। और हुजूर कायदे मिल्लत खानदान आला हजरत के एक फर्द है। हुजूर कायदे मिल्लत का अकीदा तो मजबूत है ही, हमने देखा है जो उनके दामन से वाबस्ता हो जाता है वो भी वहाबिया से नफरत करने लग जाता है। अल्लाह अकबर। तो सुन्नी सही अकीदा हो, ये पहली शर्त है। और उसके बाद में दूसरी शर्त है उसके पास में इल्म हो। मैं कहता हूं जिसने इल्म का सागर जो हुजूर ताजुश शरिया थे, इल्म के सागर हुजूर ताजुश शरिया से इल्म के जाम पिए हो, उस हुजूर कायदे मिल्लत के पास में कितना इल्म होगा ये वही जानता है जिसने इल्मी अंदाज के अंदर हुजूर कायदे मिल्लत से गुफ्तगू की हो। ये शर्त भी हुजूर कायदे मिल्लत के अंदर बड़ी तमन्नाई के साथ में पाई जाती है। और उसके बाद में तीसरी शर्त को आप देखेंगे, तीसरी शर्त क्या है, उसका सिलसिला मुत्तसिल हो। मैं कहता हूँ हुजूर कायदे मिल्लत के हाथों में हाथ देकर के आप देख ले, आपकी जबान से ये जुमला निकलता हुआ नजर आएगा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरतुल्लाह के वास्ते। ये सिलसिला ऐसा मुत्तसिल है कि हुजूर आला हजरत के पीरो मुर्शिद ने खुद कह दिया मेरे सिलसिले में लोगों को मुरीद करके इस सिलसिले को तुम फरोग दो। और उसके बाद में आखिरी जो चौथी शर्त है कि वो फासिक ना हो, गुनाह कबीरा से बचता हो। मैं कहता हूँ नजरें उठा के देख लो, नजरें उठा के देख लो, इस जमाने में गुनाह कबीरा से बचने वाले जो पीर है उनमें हुजूर कायदे मिल्लत का कितना बड़ा मकाम है। आप कभी वीडियोग्राफी के अंदर हुजूर कायदे मिल्लत को मुलव्विस नहीं देखेंगे, तस्वीर कशी में नहीं देखेंगे। वहाबिया के साथ में आप खाना खाने के लिए जो जवाज की राह तलाश करते हैं उनमें कायदे मिल्लत आपको नजर नहीं आएंगे। बद मजहबों के जबिया को जो हलाल करना चाहते हैं उनमें आपको कायदे मिल्लत नजर नहीं आएंगे। और ख्वातीन के साथ में जो मेला और हुजूम करते हैं उनमें कायदे मिल्लत आपको नजर नहीं आएंगे। मैं कहता हूं जितने भी गुनाह कबीरा है उनकी फहरिस्त बना करके देख लो और उसके बाद में कायदे मिल्लत की जात को देखो। हमने कहा था ना मुत्तकी बनकर दिखाए। इस जमाने में कोई हजरत अख्तर रजा को छोड़कर इस जमाने के अंदर हम कहते हैं तकवाए ताजुश शरिया का जलवा अगर देखना हो तो हुजूर कायदे मिल्लत के अंदर आपको आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम सरकार
हुज्जतुल इस्लाम सरकार और हुजूर ताजुल शरिया का तकवा आपको पूरे तौर पर नजर आएगा। अजीजान मुकर्रम, एक बात मैं और बताऊं, अच्छे पीर की पहचान क्या है? एक बार कौनैन के दूल्हा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें अच्छों की पहचान बताऊं? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह बताइए। मेरे आका ने फरमाया, इज़ा रहू ज़ुकिर अल्लाह, उनको जब देखो तो खुदा याद आ जाए। आपने कायदे मिल्लत को देखा है? अगर देखा है तो आप गवाही देंगे, मैंने भी देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी कायदे मिल्लत का चेहरा देखते दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है। बेशक बेशक हुजूर कायदे मिल्लत के अंदर ये बात भी बदर्जा अतम पाई जाती है। आपने देखा होगा कितने लोग हैं गुनहगार आए थे, कायदे मिल्लत का चेहरा देख करके नेक बन गए। कितने गैर मुस्लिमों ने आपका चेहरा देख करके कलमा पढ़ लिया। कितने वहाबिया दयाबना ने आपका चेहरा देख करके गुमराहियत से तौबा कर ली। पीर का मतलब क्या होता है कि जब बंदा किसी से मुरीद हो, अगर गुनहगार था तो नेक बन जाए, और नेक था तो पहले से ज्यादा नेक बन जाए। हुजूर कायदे मिल्लत की बारगाह में गुनहगार आते हैं तो नेक बन करके जाते हैं, और नेक आते हैं और ज्यादा नेक बन करके जाते हैं। आज मुझे बताओ तस्वीर कशी से, वीडियोग्राफी से बचने वाले किसके मुरीद है? वहाबियों से दूर रहने वाले किसके मुरीद है? कवाली ढोल ताशा से परहेज करने वाले किसके मुरीद है? बद मजहबों के जबिया से बच करके अपने हाथ से लिबा करके खाने वाले किसके मुरीद है? और मैं कहता हूं आज फितनों के इस दौर के अंदर तरह तरह के जो तमाशों में जो मुब्तला है, उन तमाशों को छोड़ करके शरीयत पे गामजन होने वाले किसके मुरीद है? मुरीदों को देख करके पता चलता है कि पीर का मर्तबा कितना बुलंद है। और हजरात मुकर्रम, एक बात मैं और यहां पर भी अर्ज करना चाहूंगा, इससे पहले भी मैंने बताई है। हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह तआला अलैह अल इब्रीज शरीफ के अंदर जो आपके मलफूजात को जमा किया गया है, उसमें लिखा गया है, उसका खुलासा मैं आपको बताता हूं। हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जब किसी वली कामिल का इंतकाल होता है, अल्लाह का वली जब दुनिया से चला जाता है, उस वली की जो रूहानियत होती है, उस वली का जो सिर होता है, उसको हजरत जिब्रील अमीन संभाल करके रखते हैं। उसका नाइब जब उसके लायक हो जाता है तो उस वली कामिल की रूहानियत और उसका सिर उसके जानशीन को दे देते हैं। लेकिन अगर वली के इंतकाल के बाद में, उस कुतुब के इंतकाल के बाद में उसका जानशीन अगर मजबूत होता है, अगर उस मनसब के लायक होता है, तो ये मर्तबा और ये ओहदा हजरत जिब्रील के पास में महफूज नहीं रहता है। उधर अल्लाह का वली इंतकाल करता है और उधर वो रूहानियत उठा करके उनके जानशीन को दे दी जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरा अपना फैसला नहीं है, मैं आपसे फैसला करवाना चाहता हूँ। हुजूर कायदे मिल्लत को आपने हुजूर ताजुल शरिया के जमाने में भी देखा था और हुजूर ताजुल शरिया के विसाल के बाद भी देखा था। आपने क्या देखा था? वो देखा था, मैं बताता हूँ। हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का विसाल हुआ है जुमा के दिन मगरिब की अजान के वक्त में, और हुजूर ताजुल शरिया की बारगाह में मैं पहुंचा हूँ जुमेरात के दिन असर के वक्त में। असर से लेकर मगरिब तक हुजूर ताजुल शरिया की बारगाह में हॉस्पिटल के अंदर में रहा। हजरत को डिस्चार्ज किया गया, मैं हजरत के साथ में बाहर आया, मैंने हुजूर ताजुल शरिया का चेहरा भी देखा। लोग जब बुढ़ापे में चले जाते हैं तो बदन कमजोर होता है, तो चेहरा मुरझा जाता है। कसम खुदा की कहता हूँ, 24 घंटा पहले इंतकाल से मैंने देखा था, रोजाना जितना चमकते थे आखिरी वक्त में उससे ज्यादा चमकदार नजर आ रहे थे। हुजूर ताजुल शरिया को जब गाड़ी में बिठा दिया गया, 24 घंटे के बाद में हुजूर ताजुल शरिया का विसाल हो गया। जब हुजूर ताजुल शरिया का विसाल हुआ तो हमने हुजूर कायदे मिल्लत को देखा। मैंने कहा, हमारे साथियों ने कहा, बहुत सारे उलमा ने कहा कि हुजूर कायदे मिल्लत को देख करके ऐसा लग रहा था कि कायदे मिल्लत नहीं बल्कि ताजुल शरिया नजर आ रहे हैं। तो मुझे हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग की वो बात याद आई, जब अल्लाह का वली इंतकाल करता है, उसकी रूहानियत, उसके जानशीन अगर उसके लेने के लायक होते हैं तो उनकी रूहानियत को महफूज नहीं रखा जाता है। इंतकाल के फौरन बाद में उसके जानशीन को वो रूहानियत दे दी जाती है। तो मेरे दिल से आवाज आई, या हुजूर ताजुल शरिया, आप दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन आप जिसको जानशीन बना के जा रहे हैं वो वाकई आपके जानशीन बनने के लायक है। इधर आपका इंतकाल हुआ, उधर उनके चेहरे पे आपकी रूहानियत का जलवा नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। और मैंने बुजुर्ग का कौल पढ़ा था, अगर अल्लाह का वली 5 मिनट के लिए कहीं पर बैठ जाए ना, वहां पे इतना नूर होता है उसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। और अल्लाह का वली जहां पे रहता है वहां पे कितनी रूहानियत होगी। मैं बात समझाने के लिए एक बात आपको, एक वाकया सुनाना चाहूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे, गारे सौर में पहुंचे। गारे सौर में कितने दिन रहे? 3 दिन रुके। कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूँ, मेरे आका अलैहि सलाम काफिरों के तलवार के घेरे को तोड़ करके चले आए, काफिर देख नहीं
पाए तो हुजूर गार में 3 दिन क्या कर रहे थे? मेरे आका चाहते एक मुट्ठी उछाल देते और गार से निकल करके चले जाते, काफी नहीं देख पाते। लेकिन जब मैंने तारीख पढ़ी, हजरत सिद्दीक अकबर का दौर पड़ा, तब मुझे समझ में आया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हो सकता है इसलिए 3 दिन गार सौर के अंदर कयाम किया हो, ताकि मेरे बाद में जो फितने पैदा होंगे उन फितनों का मुकाबला करने के लिए एक अजीम जात की जरूरत है। मेरे आका ने गार के अंदर हजरत सिद्दीक अकबर को वो सब कुछ पिला दिया जो फितनों का मुकाबला करने के लिए जरूरत थी। जब गार से निकल करके हजरत सिद्दीक अकबर के साथ में मेरे आका जब गए हैं मकाम कुबा के अंदर, जिन लोगों ने हुजूर को नहीं देखा था वो आए और हजरत सिद्दीक अकबर को देखने लगे। सिद्दीक अकबर समझ गए कि लोग मुझको गलत समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि मैं खादिम नहीं हूं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक पर्दे से पर्दा करके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सरे पाक के ऊपर तान दिया और बता दिया मैं गुलाम हूं, आका इधर तशरीफ फरमाए। बात समझ में नहीं आती, आका तो पहचान लिया जाता है, लोगों को शुबा कैसे हो गया? शुबा इसलिए हो गया कि 3 दिन तक गार में मेरे आका ने जो रूहानियत पिलाई थी हजरत सिद्दीक अकबर को, तो फिर पता लगाना मुश्किल हो गया था कि ये नूर वाली जात कौन सी है। हजरत सिद्दीक अकबर में मेरे आका अलैहिस्सलाम की नूरानियत का जलवा नजर आ रहा था। हजरत मुकर्रम, मैं ये तशबीह नहीं दे रहा हूं, बात समझाने के लिए बात बता रहा हूं। जब मेरे आका 3 दिन तक गार के अंदर हजरत सिद्दीक अकबर को इतनी रूहानियत अता फरमाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब का सदका गुलामों को भी अता किया है। इसीलिए हमने देखा है हुजूर के गुलाम भी जब किसी पे तवज्जो डालते हैं तो उसका भी नक्शा बदल देते हैं। दिल्ली की सरजमीन पे चले जाएं, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला का मजार है। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला, रात का वक्त है, मेहमान आ गए, परेशान थे, मैं खाना कहां से खिलाऊं? नान भाई आया, कहने लगा हुजूर मैं खाना बनाता हूं, खाना बना के लाया, सारे मेहमानों को खिला दिया। हजरत बाकी बिल्ला खुश हो गए, कहा जो मांगना है मांग ले। कहा हुजूर आप ऐसा करें जैसे आप हैं वैसा ही मुझको बना दे। वो पढ़ा लिखा था नहीं, समझ नहीं पाया, कहने लगा हुजूर जैसे आप हैं वैसा ही मुझको बना दे। आपने कहा कुछ और मांगो? कहा नहीं हुजूर मैं तो यही मांगता हूं। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला का दरिया रहमत जोश में आया, आपने सीने से उस रोटी बनाने वाले को लगाया और लगा करके रूहानियत को उसके सीने में मुंतकिल कर दिया। और रात के बाद में सुबह के वक्त में जब खानका से निकला तो लोगों ने कहा देखो ख्वाजा बाकी बिल्ला आ गए हैं। अगर अल्लाह का वली अपने सीने से एक बार किसी को लगा दे तो अपने जैसा बना देता है। सारी जिंदगी सफर के अंदर, आखिरी उम्र के अंदर हजरत अल्लामा मुफ्ती आशिक साहब हुजूर ताजुल शरिया के साथ में रहते थे, लेकिन जब हुजूर ताजुल शरिया के विसाल को 1 साल बाकी रह गया, हुजूर मुफ्ती आशिक साहब अपने कामों में मसरूफ रह गए। हजरत के पास में ज्यादा वक्त में हुजूर कायद मिल्लत रहते थे, दिन में भी साथ में है, दिगर औकात में भी साथ में है, रात में भी साथ में सोते हैं। मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन हुजूर ताजुल शरिया के विसाल के बाद में मुझे पता चला ये 1 साल तक हजरत बाहर निकलना बंद कर दिए और कमरे के अंदर कायद मिल्लत को साल भर साथ में रखा। आखिर क्यों रखा ये उस दिन पता चला जिस दिन हुजूर ताजुल शरिया का विसाल हुआ। तब लोग कह रहे थे ये ताजुल शरिया नजर आ रहे हैं, तो मेरे दिल से आवाज आई वो साल भर तक जो पिलाया था वो जलवा आज हुजूर ताजुल शरिया की शक्ल के अंदर नजर आ रहा है। अल्लाह के मुकर्रम वो अजीम जात वो पीरे कामिल इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम गुरबा अहले सुन्नत के ऊपर अपनी तवज्जो और अपनी नजर करम किए हुए हैं। और हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि आज हुजूर कायद मिल्लत इस महफिल के अंदर हाजिर होने वाले जो अपने गले के अंदर कादरी पट्टा डालने वाले हैं उनको अपने सिलसिले के अंदर दाखिल फरमाए। अल्लाह वालों की तवज्जो भी क्या हुआ करती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि कोई काफ के ऊपर एक परिंदा रहता है, जब सर्दी का मौसम आता है वो परिंदा कई गर्म इलाके में चला जाता है, उसके अंडे कोई काफ में रह जाते हैं और वहीं से वो अंडों पे तवज्जो करता है। जब सर्दी खत्म हो जाती है वो परिंदा वापस कोई काप पे जाता है तो अंडों से बच्चे निकल आते हैं। मैं कहता हूँ एक परिंदा अगर कई किलोमीटर दूर चला जाए तो अंडों पे तवज्जो करे तो अंडों से बच्चे निकल सकते हैं। तो अगर पीरे कामिल अपने मुरीद पे नजर करे तो मुरीद को क्या से क्या बना सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत मुकर्रम ये तो बड़ी किस्मत की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसे पीर अता फरमाए हैं। मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलामी शम तबरेज नबाशद, यानी जब हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह हजरत शम तबरेज के मुरीद नहीं हुए थे, गुलाम नहीं हुए थे तो बात अलग थी, लेकिन जब शम तबरेज के मुरीद हो गए तो उसके बाद में नक्शा ही बदल गया। पीर की जरूरत किसको नहीं पड़ती है। याद करो इमाम राजी जो अपने जमाने के जबरदस्त आलिम थे, इंतकाल का जब वक्त आया ना शैतान ने आकर के कहा था अल्लाह के एक होने पे दलील दो। आप दलील देते रहे, वो दलीलों को काटता रहा, 360 दलीलें दी, सारी दलीलों को काट दिया, परेशान हुए। बहुत
बहुत दूर आपके पीर और मुर्शिद हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा वुजू बना रहे थे, अपना लोटा वहीं से उछाल के कहा, तू कह क्यों नहीं देता, मैंने खुदा को बगैर दलील के एक माना है। आपने ये बात कही और ईमान पे खात्मा हो गया। अगर पीर कामिल हो तो मौत के वक्त में ईमान बचाने आता है, शैतान से हिफाजत करता है। और हमारा पीर कौन है? हमारा पीर वो है जिसने हमें अपना नहीं गौसे पाक का गुलाम बनाया है। कौन गौसे पाक? हजरत शेख अब्दुल जब्बार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मेरी माँ यानी गौसे पाक की अहलिया मोहतरमा जब अंधेरे में जाती थी तो अंधेरे में उजाला ही उजाला हो जाता था। एक बार गौसे पाक तशरीफ ले गए, आपने फरमाया कि ये, कहने लगी कि मैं नूर देखती हूँ। गौसे पाक ने फरमाया ये नूर नहीं है, ये शैतान का फरेब है। सरकार गौसे पाक ने उस फरेब को दूर किया और उसके बाद में अपनी तरफ से नूर दिया और आखिर का जुमला कहा, मैं अपने गुलामों के साथ में यही करता हूँ। यानी मेरे गुलामों को जब मुरीद परेशान, जब मेरे गुलामों को, मेरे मुरीदों को जब शैतान परेशान करता है तो मैं इसी तरह उनकी मदद के लिए आता हूँ। फरमाया मेरा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मर सकता। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक रहे मेरे गले में पट्टा तेरा, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। आज अगर ये निस्बत कायम करनी है कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस इंतजार कीजिए, थोड़ी देर के बाद में ये निस्बत कादरी बांटने के लिए ऑनलाइन हुजूर कायद मिल्लत तशरीफ लाएंगे। तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अजीजान मुकर्रम, आज के फितनों के इस दौर के अंदर वैसे तो मुरीद होना फर्ज और वाजिब नहीं, लेकिन मैं कहता हूं जरूरी और लाजिम हो गया, इसलिए कि अगर आप किसी सही पीर से मुरीद नहीं होंगे तो किसी फरेबी और धोखेबाज के चंगुल में गिरफ्तार हो जाएंगे, जो न सुन्नी होगा न जो है वो बाअमल आलिम होगा, वो तुम्हें गुमराह करके रख देगा। अपना ईमान बचाना है, अपना अकीदा बचाना है तो आला हजरत सरकार का सिलसिला जो बिल्कुल मुत्तसिल होकर के गौसे पाक तक पहुंचाए उस सिलसिले में दाखिल हो जाए। और किससे आप मुरीद होंगे? हुजूर कायद मिल्लत से। किससे मुरीद होंगे? हुजूर कायद मिल्लत से। इंशाअल्लाह अगर आपने इस सिलसिले को मजबूती से साम लिया, यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा पार है। हमेशा यही दुआ करते रहे, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरी अब्दुल कादरी कुदरत के वास्ते। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।